Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number is 5, Soil. We completed session number 1, right? Today is session number 2. In session number 2, I am going to explain you about soil, types of soil. Types of soil में sand, silt, clay and loam. But before I start explaining about today's session, let me revise you all the things about last session. मतलब last session में मैंने जो कुछ भी किया था वो आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी. क्या किया था हमने last session में? Vocabulary words and meanings. So let's begin that. Vocabulary words. Number 1, soil. S-O-I-L. Soil. Number 2, humus. H-U-M-U-S. Humus. Number 3, loam. L-O-A-M. Loam. Number 4, erosion. E-R-O-S-I-O-N. Erosion. Number 5, topsoil. T-O-P-S-O-I-L. Topsoil. Number 6, bedrock. B-E-D-R-O-C-K. Bedrock. Number 7, protection. P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. Protection. Number 8, conservation. C-O-N-S-E-R-V-A-T-I-O-N. Conservation. Number 9, roots. R-O-O-T-S. Roots. Number 10, nutrients. N-U-T-R-I-E-N-T-S. Nutrients. Number 11, eroded. E-R-O-D-E-D. Eroded. Number 12, wind. W-I-N-D. Wind. Number 13, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S. Particles. Number 14, pieces. P-I-E-C-E-S. Pieces. Number 15, clay. C-L-A-Y. Clay. Let's pronunciate it once again. Soil, humus, loam, erosion, topsoil, bedrock, protection, conservation, roots, nutrients, eroded, wind, particles, pieces and clay. Now kids, let's move to meanings. Meanings में number 1, silt, sand, mud and so on that is carried by flowing water and is left at the mouth of a river or in a harbor. मतलब silt मतलब कोई भी चीज़ रिवर के आजू बाजू में बह के जाती है, बह के आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिल्ट. जैसे सैंड, मड और ट्विग्स जैसी लीव्स और जैसी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिवर्स के माउथ में आ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे किड्स? सिल्ट. नाउ नंबर 2, loam. Good quality soil containing sand, clay and decayed vegetable matter. Loam is a type of a soil, kids. In that soil, it is full of with decayed vegetable matter and full of sand and clay. It means loam is a good quality of a soil, right? Now, number 3, erosion. The process by which the surface of something is gradually destroyed through the action of wind and rain.
कोई भी चीज़ अगर रेन और विंड के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन। जैसे कि कोई भी स्ट्रीट खराब हो जाती है, कोई भी रिवर्स के आजू बाजू का एरिया खराब हो जाता है, डैम हमने बनाया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रीज निकल जाते हैं, कोई भी रोड में खड्डे हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे किड्स, इरोजन। नाउ नंबर 4, कंजर्वेशन, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, वेस्टेड, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन मतलब कोई भी चीज़ को बचा लेने से, उसको वेस्ट करने से पहले, उसको डैमेज होने से और डिस्ट्रॉय करने से हम उसको बचा लेते हैं। मतलब कि उसको हमने क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया। क्या कर लिया किड्स, कंजर्व कर लिया, राइट। नाउ नंबर 5, प्रिवेंट, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग और टू स्टॉप समबडी डूइंग समथिंग। कोई भी चीज़ को हैपन होने से उसको रोकना, स्टॉप कर लेना, मतलब उसको प्रिवेंट कर लेना। I hope so you understand all the meanings, right kids? So here we completed revision of session number 1. Now let's begin today's session. In today's session what I am going to explain you? I am going to explain you about soil, types of soil, sand, silt, clay and loam. Let's begin that. Let us now learn more about soil and its different types. Soil के बारे में और उसके soil के different types के बारे में हम पढ़ेंगे। Soil. Soil is the topmost layer of the earth's surface. Soil है वो अर्थ की topmost layer है, मतलब अर्थ का सबसे पहला वाला लेयर मतलब soil। अर्थ का सबसे पहले वाला लेयर मतलब soil, तो हम उसको क्या बोलेंगे। इफ सपोज आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट blank is the topmost layer of earth's surface, what you are going to answer? Soil, right? Soil is the topmost layer of the earth's surface. Clear kids? It consists mainly of fine particles of rocks, humus and minerals along with some amount of water and air. मतलब इवन जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। इट कंसिस्ट मतलब उसके अंदर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। किड्स सॉइल पता है ना आपको, धूड़, रेती, क्ले, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। सॉइल के अंदर हमारा पहला वाला लेयर होता है, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स भी एडेड होते हैं, छोटी छोटी क्ले भी एडेड होती है, छोटे छोटी सैंड भी एडेड होती है, राइट। तो सॉइल कंसिस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ह्यूमस एंड मिनरल्स। ह्यूमस मतलब हमारी कोई भी वेस्ट मैटर होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, कोई भी ट्रीज़ की वेस्ट मैटर्स होते हैं, हमारे कोई भी एनिमल्स डेड हो गए होते, ये सारी की सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने में आता है, मतलब उसको दफना देते। कोई भी एक खाली प्लेस होती है ना, गार्डन, कोई भी ब्लैंक प्ले वाला कोई भी ग्राउंड, तो ऐसी ऐसी चीज़ों में यहाँ पे वो लोग कर देते, उस वजह से वहाँ की सॉइल कैसी हो जाती है, ह्यूमस। इसका मतलब ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है सॉइल में। इवन ये तो हम बोल रहे ग्राउंड में, गार्डन में हम लोग ये कर रहे हैं, राइट। इफ़ सपोज वी आर नॉट, हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ नहीं की है, बट स्टिल सॉइल तो सॉइल है, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, राइट। एयर, विंड, रेन आता है, हमारे कोई भी सीज़न होती है, राइट। तो उस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप चीज़ें दफन हो जाती है, मतलब अंदर हो जाती है, राइट। उस वजह से कोई भी सॉइल कैसी हो जाती है, इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमस। सॉइल में क्या आ जाता है, सॉइल इज़ फुल ऑफ ह्यूमस, राइट। एंड मिनरल्स अलॉन्ग विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। किड्स मिनरल्स पता है, जैसे हमारे बॉडी में मिनरल्स चाहिए हमें ग्रो होने के लिए, हमारे बॉडी में कोई भी डिफेक्ट ना हो, उस वजह से हमें बॉडी में मिनरल्स चाहिए, राइट।
तो सेम लाइक दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड्स मिनरल्स, प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स अच्छे ग्रो होने के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जो सॉइल में ऑलरेडी मिनरल्स हो। अगर ऐसी सॉइल हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें अच्छा वाला मिनरल्स होता है तो हमारे प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, बहुत ही हेल्दी ग्रो होंगे। उसमें कोई भी कुछ भी हमें, अगर प्लांट हेल्दी ग्रो होता है राइट, तो उसके भी मिनरल्स हमें मिलेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे राइट। तो प्लांट्स ऑल्सो नीड्स मिनरल्स टू ग्रो वेल, प्लांट्स को भी एक अच्छी चीज़ चाहिए जैसे कि मिनरल्स एक अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए। क्लियर किड्स, जैसे हमारे बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है बिल्कुल प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। क्लियर किड्स, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। किड्स, हम प्लांट्स में वाटर ऐड करते हैं राइट, तो वाटर में बबल्स आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी आपने नोटिस किया है? छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जब भी सॉइल को पानी की नीड होती है ना, तभी। हाँ, अगर ऑलरेडी आप पानी डाल देते हो और वापस से डालोगे तो शायद कम दिखेगा, बट जब भी पानी देना हो और उससे आप पहले नोटिस करोगे ना तो उसमें छोटे छोटे बबल्स होंगे। बबल्स मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या मैसेज मिल रहा है? मतलब प्लांट्स के अंदर एयर होती है। क्या होती है? एयर होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड्स एयर टू ग्रो राइट। तो एयर की वजह से हम पानी डालते हैं, उस वजह से उसमें बबल्स होते हैं। तो सॉइल में क्या होता है? व्हाट सॉइल कंटेन्स? सॉइल कंटेन्स छोटे छोटे रॉक्स, ह्यूमस, मिनरल्स along with some amount of water and air. सॉइल के अंदर एयर और वाटर की भी थोड़ी अमाउंट होती है। किड्स, आई होप सो ये क्लियर हो रहा है आपको अच्छी तरह से। सॉइल का हो रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रीप्ले करके आप चेक करोगे। ओके, Humus is the substance formed from the decay of dead plants and animals. Humus क्या है? Humus एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट्स और एनिमल्स को डीके करके हमें मिलता है। जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी खाली गार्डन हो, कोई भी खाली ग्राउंड हो, उसमें हम लोगों ने डीके कर देना है। एक बड़ी सी पिट को खोद के हमें सारी की सारी चीज़ें हमें डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर फ्यू ईयर्स वो सॉइल कैसी हो जाती है? वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स मतलब धीरे धीरे ई गड़वा मंडे, मतलब एनी क्वॉन्टिटी ओછી થવા માંડે અને ई ઇનવિઝિબલ થવા લાગે બિકોઝ જે સોઇલ છે ને એની અંદરની જે બધી સારી સારી વસ્તુ છે ને, મિનરલ્સ ને એવું બધું છે ને, એ લઈ લે છે એટલે શું થાય? डिकम्पोज થવા લાગે। डिकम्पोज होने के बाद ये सॉइल कैसी हो जाती है? बहुत ही अच्छी हो जाती है। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमस, मतलब उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो वो सॉइल कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्लियर किड्स? नाउ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ द सन्स हीट, विंड एंड वाटर। किड्स, लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर किया था, ये सॉइल का ही था। मैंने आपको एक पिक्चर या फिर वीडियो दिखा के एक्सप्लेन किया था, याद है? नहीं याद है तो फटाफट से एक बार याद करवा देती हूँ। बहुत सालों पहले की बात है जब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स ऐसी चीज़ थी नहीं। यहाँ पे हमारे अर्थ में बड़े बड़े पत्थर थे। क्या थे? बहुत ही ह्यूज रॉक्स थे। तो सीजन्स तो आती है, समर, विंटर, मॉनसून। समर में बहुत सारा सन की हीट होती है, विंटर में ठंडी होती है और बहुत सारी विंड ठंडी ठंडी ब्लो होती है राइट, और मॉनसून में बहुत सारी रेन होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली रॉक के ऊपर गिर रही थी राइट। ये सब कुछ रॉक के ऊपर आ रहा था। तो रॉक थोड़े थोड़े वीक हो गए। क्या हो गए? वीक होना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे वीक होना स्टार्ट हो गए उसमें रॉक्स में से उसके पीसीस होने लगे। क्या होने लगा? पीसीस।
बड़ा पीस था, छोटा हुआ, छोटा आधा हुआ, उसमें से आधा हो गया, फिर उसमें से इतने रॉक्स हुए, उस रॉक्स में से सॉइल मतलब साव भूको થઈ ગયો, सॉइलનો साव એ भूको થઈ ગયો, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, सॉइल में, राइट। फिर ये सारी की सारी तो कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, सन्स हिट, विंड एंड वाटर, राइट, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस थी। अब था इसमें कि बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी ट्रीज, ये सब कुछ था, तो ये जैसे जैसे मर रहे थे या तो फिर अंदर दफन होते जा रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, तो उस वजह से ये सब कुछ अंदर चला जा रहा था और हमें अच्छी सी फर्टिलिटी वाली सॉइल मिलने लगी। क्लियर किड्स? नाउ the remains of dead plants and animals also get mixed with these species. मतलब આ પીસ નાના નાના થવા માંડ્યા, એટમોસ્ફિયર ચેન્જ થતું રહ્યું, એની સાથે સાથે આ બધા ડેડ પ્લાન્ટ્સ અને એનિમલ્સ भी મિક્સ થવા માંડ્યા बिकॉज कोई भी चीज़ है, हम यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है कोई भी रिवर का, राइट, तो हम उसमें कुछ भी चीज़ डालेंगे, जैसे बोट बना लेंगे तो वो पानी के साथ फ्लो हो जाएगी। कोई भी कचरा डाल रहे हैं वो भी पानी के साथ फ्लो हो रहा है, तो ये सारी की सारी, कोई भी एनिमल्स मर रहा है, गिर रहा है, प्लांट्स गिर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब ये जो पीसीस हो रहे थे तब उसके साथ मिक्सअप हो रही थी, किसी के साथ सॉइल में दब रही थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती चली गई। Soil contains most of the nutrients mainly from humus. Soil के अंदर nutrients भी होते हैं, right? Mostly nutrients हमें किस में से मिलते हैं? Mostly from humus. Mostly हमें सारे के सारे minerals, nutrients किस में से मिलेंगे? ह्यूमस में से, राइट। जैसे मैंने बोला कि वो डिकम्पोज होके एक अच्छी वाली सॉइल हमें देता है, तो उस सॉइल में अच्छी तरह से हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आ जाते हैं। क्लियर किड्स? दैट अ प्लांट नीड्स टू ग्रो, मैनी एनिमल्स ऑल्सो लिव इन दिस सॉइल। मतलब सॉइल में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस वजह से देर आर सो मैनी एनिमल्स who are living in the soil। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, एंट, स्नेल, राइट, these types of animals lives in soil, right, because उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रॉपर अमाउंट में एयर भी है, वाटर भी है। इवन आप लोगों ने कभी नोटिस किया है तो रैबिट भी बर्रों के अंदर रहते हैं, रैबिट, रैट्स, राइट, तो क्योंकि उसको सारी की सारी चीज़ें अंदर ही मिल रही है, तो दे इजीली कैन सर्वाइव इन द सॉइल, राइट किड्स। Once again I am reading whole that paragraph, try to listen it very carefully. Soil is the topmost layer of the earth's surface. It consists mainly of fine particles of rocks, humus and minerals along with some amount of water and air. Humus is the substance formed from the decay of dead plants and animals. Soil is formed by the breaking down of rocks into smaller pieces by the action of sun's heat, wind and water. The remains of dead plants, animals also get mixed with the pieces. Soil contains most of the nutrients mainly from humus that plants need to grow. Many animals also live in the soil. Now here we completed all the things about soil. Now let's start types of soil. Types of soil. Depending on the size and feel of the soil particles, there are 4 main types of soil. Soil कैसे हम पहचानेंगे?
हम क्लासरूम में बहुत सारे किड्स होते हैं, राइट। यू ऑल आर इन 4th ग्रेड, मतलब आप काव्या वाले क्लास में हो। काव्या, मन बोरनिया, मन वाघेला, मन सूचक, तो 3 मन है हमारे क्लास में, राइट। तो 3 मन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ? क्योंकि तीनों के फीचर्स अलग है, तीनों के कलर अलग है, तीनों की हाइट अलग है। द वे दे ऑल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। मन वाघेला को, मन सूचक को और मन पूर्णया को, राइट, विथ देयर सरनेम्स, राइट। तो बिल्कुल सॉइल में भी ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड फील ऑफ द सॉइल, मतलब उसकी साइज और उसकी फील करने से, सॉइल के पार्टिकल्स को देखने से, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं? 4 टाइप्स के। सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल: sand, silt, clay and loam. Once more, how many types of soil are there? There are 4 types of soils are there. Number 1 sand, number 2 silt, number 3 clay and number 4 loam. तो हमें ये डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, हमें कैसे पहचानने में आती है? तो कि उसकी साइज को देखकर और उसके पार्टिकल्स को फील करके हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइप की सॉइल है, कौन सी सैंडी है, कौन सी सिल्ट है, कौन सी क्ले और कौन सी लोम है। क्लियर किड्स? अब उसको मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 सैंड। सैंड पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। सैंड सॉइल के अंदर लार्जेस्ट जिसमें पार्टिकल्स होते हैं ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स सॉइल के होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंड। सैंडी सॉइल फील्स रफ एंड ग्रीटी। सैंडी सॉइल थोड़ी सी रफ भी होती है और ग्रीटी भी होती है। खरबचड़ी આપણે कहें ना, थोड़ी लागे एवी, तो सैंडी सॉइल को उसको फील कर लेते हैं हम लोग। जो भी सॉइल रफ होती है और ग्रीटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल। तो उसको टच करने से, उसको फील करने से हमें पता चलेगा ये वाली सॉइल है, वो कैसी सॉइल है? सैंडी सॉइल है। क्लियर किड्स? नाउ नंबर 2 सिल्ट। सिल्ट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड बट लार्जर देन क्ले। सिल्ट जो सॉइल होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और क्ले के पार्टिकल्स से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब वो बीच वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बीच वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें इजीली पता चल जाएगा ये कौन सी सॉइल है, तो कि ये सिल्ट वाली सॉइल है। सिल्ट feels smooth when dry and does not feel sticky when wet. सिल्ट की जो सॉइल होती है ना, वो बहुत ही स्मूथ होती है जब वो ड्राई होती है, मतलब वो सूखी होती है ना, तो वो बहुत ही स्मूथ होती है, उसको टच करने में मज़ा आता है। उसमें कोई भी रफनेस नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई भी स्टोन्स, रेती के એવું કાંઈ પણ હોય નહીં, એકદમ લીસું જ હોય। જ્યારે એ ડ્રાય છે, मतलब એ જ્યારે કોરી છે, એ સોઇલ જ્યારે કોરી છે ત્યારે કેવી છે? ત્યારે એ બહુ જ સ્મૂથ છે। કેવી છે? એ ત્યારે બહુ જ સ્મૂથ છે। અને ફીલ and does not feel sticky when wet. जब भी हम उस सॉइल में पानी ऐड करते हैं तभी उसमें से स्टिकी, मतलब चिकनी ना थाय। दूसरी सॉइल का क्या होता है कि हम उसमें जब भी पानी मतलब वाटर ऐड करते तब वो स्टिकी बन जाती है। कैसी बन जाती है? स्टिकी बन जाती है। बट सिल्ट में पानी ऐड करने से वो स्टिकी बनती नहीं है। तो इस वजह से हमें इजीली पता चल जाता है कि ये सिल्ट वाली सॉइल है। Now number 3 clay. Clay particles are smallest soil particles. Clay એટલે આપણી માટી, એ કેવા છે? એના સ્મોલેસ્ટ સાવ ઝીણા પાર્ટિકલ્સ છે। કેવા પાર્ટિકલ્સ છે? સાવ ઝીણા છે। ઇવન આપણને બહુ ઓછું ફીલ થાય એનાથી, તો આપણને ખબર પડી જાય કે આ ક્લે છે।
તમે ઓલા ક્લેથી રમો છો ને, જેનાથી તમે વૈશાલી દીદી તમને લોકોને બધું ડિફરન્ટ વેમાં શીખવાડે છે. ક્લેનું હોમ બનાવો છો, ક્લેના વેजिटेबल्स बनाओ છો, क्लेनो जोकर बनाओ છો, राइट. तो वो बहुत ही स्मूथ वाली क्ले होती है, राइट. क्ले फील्स स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट. क्ले जब ड्राई होती है, सूखी होती है, तब वो बहुत ही स्मूथ होती है. बट व्हेन वी ऐड सम वाटर इन क्ले, तब इट कन्वर्ट्स इनटू स्टिकी सब्सटेंस. मतलब वो एकदम स्टिकी बन जाती है. कैसी बन जाती है? स्टिकी बन जाती है. क्लियर किड्स? I hope so you understand the difference between sand, silt and clay. Now number 4, loam. Loam particles are a mixture of sand, silt and clay particles. लोमी सॉइल जो होती है ना, लोमी सॉइल के वो किसका मिक्सचर होती है? मतलब उसके अंदर क्या क्या मिक्स हुआ होता है? तो कि उसके अंदर सैंड भी होती है, उसके अंदर सिल्ट भी होती है और उसके अंदर थोड़े थोड़े क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं. क्या होते हैं? थोड़े थोड़े उसके अंदर क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं. उस वजह से हमें इजीली पता चल जाता है कि ये लोमी सॉइल है. इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. लोमी सॉइल होती है ना, कोई भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है. कैसी मानी जाती है? बेस्ट सॉइल मानी जाती है. इसमें प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. प्लांट्स हेल्दी ग्रो होते हैं क्योंकि लोमी सॉइल के अंदर सारे के सारे मिनरल्स और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को उसकी नीड होती है. उस वजह से लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल टू ग्रो समथिंग. ओके kids, once again I am reading all the things about all these 4 soil: sand, silt, clay and loam. Sandy soil. Sand particles are the largest soil particles. Sandy soil feels rough and gritty. Number 2, silt. Silt particles are smaller than sand and larger than clay. Silt feels smooth when dry and does not feel sticky when wet. Number 3, clay. Clay particles are the smallest soil particles. Clay feels smooth when dry and sticky when wet. Number 4, loam. Loam particles are a mixture of sand, silt and clay particles, right? It is the best soil for growing plants. Clear kids? So in today's session we understand all the things about soil and types of soil, particularly sandy soil, silty soil, clay soil and loamy soil. यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा कि दीदी आपने ये क्या रीड किया. यस, यहाँ पे सैंड, सिल्ट, क्ले और लोम लिखा है. But we also can pronunciate it as like sandy soil, silty soil, clayey soil and loamy soil. Clear kids? I hope so you understand the difference between all 4 of them. समझ में आ रहा है ना डिफरेंसेस? आपको कोई भी मैं बोलूँगी चलो इसमें से फाइंड करो सिल्ट वाली सॉइल, फाइंड करो क्ले, तो आपको इजीली समझ में आप मतलब आप बोलने चाहिए कि दीदी दिस इज द सैंडी सॉइल, दिस इज द लोमी सॉइल, दिस इज द सिल्टी सॉइल एंड दिस इज द क्ले सॉइल. You easily will getting to know the difference between all 4 of them, right? So I hope so you understand. Okay, so kids, in next session I am going to explain you about layers of soil. मैं आपको क्या explain करूँगी? Layers of soil. कितने layers होते हैं soil में? Top soil, subsoil and bedrock. ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगी. वो समझाने के बाद मैं आपको सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी.
Okay kids, so in this session, after watching this session, please complete today's work. आपका जो today's homework है ना, वो आपको complete कर लेना है. थोड़ी सी blanks है और थोड़े से questions है, बहुत ही easy है. इवन बीच बीच में मैंने आपको questions करके पूछा भी है, तो बहुत ही easy है. Try to complete it by your own self. आप अपने आप से complete करने की try करोगे. Okay kids? So till next session kids, bye.